Good morning students. Today we will do unit 11 perimeter. In our previous class we have learned about the closed figure and open figure. Today we will learn what is perimeter. Let's do an activity to learn perimeter. Firstly, take a page from notebook like this. This page is in the shape of a square, and you all know square is a closed figure. We have learned this closed figure in our previous class. Now touch and feel the boundary of this page. What will be the length of the boundary? Boundary की length क्या होगी? The length of the boundary will be the sum of the lengths of the line segment AB, BC, CD and DA. इसकी जो टोटल बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री है, इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी द सम ऑफ द लेंथ्स. सम मीन्स एडिशन. एडिशन सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, BC, CD एंड DA. इट मीन्स जो लाइन सेगमेंट AB की लेंथ होगी उसमें हम प्लस करेंगे लेंथ ऑफ BC, उसमें हम प्लस करेंगे लेंथ ऑफ CD, उसमें हम प्लस करेंगे लेंथ ऑफ DA, और हम इन चारों लाइन सेगमेंट की लेंथ्स को ऐड करेंगे. सो लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. सो लेट अस मेजर द लाइन सेगमेंट ऑफ AD और DA की लेंथ को हम मेज़र करेंगे. 0 को प्लेस करेंगे यहाँ पर और देखेंगे दूसरी साइड जो है वो हमारी स्केल पर कहाँ आ रही है. यहाँ देखिए इसका मेज़र आ रहा है 0 to 14.3. So length of the one side of this square is 14.3 centimeter. As it is a square, so length of all side of this square is 14.3 centimeter. क्यों होगी 14.3 सेंटीमीटर सभी लाइन सेगमेंट की लेंथ? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की 4 साइड्स कैसी होती हैं? सेम इक्वल होती हैं. तो सभी साइड्स इक्वल हैं. तो अगर ये 14.3 है DA तो AB भी 14.3, BC भी 14.3 और CD भी 14.3. तो हम क्या करेंगे? 14.3 जब चारों साइड्स 14.3, 14.3, 14.3 होंगी तो इस पेज की बाउंड्री की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये सारी क्या है? बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ दिस पेज. तो हम कैसे मेजर करेंगे बाउंड्री को? हम इन चारों की चारों लेंथ्स को हम प्लस कर देंगे. अब हम इन चारों लेंथ्स जो लाइन सेगमेंट के हमने लेंथ्स मेज़र की है, इन चारों को हम प्लस करेंगे. 14.3 प्लस 14.3 प्लस 14.3 एंड 14.3. जैसे हम सिंपली प्लस करते हैं वैसे ही हम पॉइंट वाले नंबर्स को भी प्लस करेंगे. 3 and 3 6 and 3 9, 9 and 3 12. 12 का 2 carry is 1, 4 4 8 and 4 12 and 4 16 and 1 17. Carry is 1 1 2 3 4 and 5. It means जो 4 की 4 लाइन सेगमेंट की लेंथ को जब हमने प्लस किया, here our answer is 57.2 centimeter. This is the length of the boundary of this page and this length is called the perimeter of this page. Okay? जो हमने बाउंड्री की लेंथ अभी फाइंड आउट की है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस पेज, दिस बाउंड्री टोटल सम ऑफ द बाउंड्री, जो टोटल बाउंड्री की लेंथ आई है, दैट लेंथ इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस पेज. सो व्हाट वी हैव लर्नड बाय डूइंग दिस एक्टिविटी? वी लर्नड व्हाट इज perimeter. The length of boundary of a closed figure is called the perimeter of the closed figure. As in that activity we have a square or like a closed figure. Closed figure में हमारे पास क्या था? Square था, and we measure the length of the boundary and उसकी boundary की length को measure किया था and we find the perimeter of that square. Or we can say sum of the lengths of all sides of a closed figure is called perimeter. Closed figure की सभी sides की length का जब हम sum लेंगे, उन्हें plus करेंगे, that is called the perimeter of closed figure. Now let's start worksheet 2.
So worksheet 2, question 1 is find the perimeter of the following figures by measuring the sides. So here A part is, here is a triangle. Firstly we will measure the sides of this triangle and find the perimeter of this triangle. This is a book work. We will do this sum in book. मैंने बुक से इन तीनों साइड्स को मेज़र कर लिया है. लेंथ ऑफ दिस साइड इज़ 3.4 सेंटीमीटर and this side is 3.2 centimeter and 3.2 centimeter. You will write the measure of this side. इनकी जो साइड्स का मेज़र है इनके साथ साथ राइट करोगे and you will add this 3 sides in your rough notebook and that is here our answer is 9.8 and you will write the perimeter in this triangle. ट्रायंगल के बीच में पैरीमीटर राइट करेंगे. सो नाउ अब हमने ऐड कर लिया है तो हमारा आंसर आया 9.8 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ 9.8 सेंटीमीटर? 9.8 सेंटीमीटर इज़ द पैरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल. क्योंकि हमने तीनों साइड लाइन जो इसकी साइड्स हैं लाइन सेगमेंट की लेंथ को हमने मेजर किया, फिर उसे प्लस किया, उसका सम फाइंड आउट किया. दैट इज़ कॉल्ड द पैरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर. जब हम उसकी बाउंड्री को सबको हमने मेज़र कर लिया है, उसकी लेंथ को माप लिया है, दैट इज़ कॉल्ड द पैरीमीटर. सो 9.8 सेंटीमीटर इज़ द पैरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल. तो हम इसको ट्रायंगल के बीच में राइट कर देंगे क्योंकि आपके पास बुक में स्पेस कम है. आप इस लेंथ के मेज़र को साइड में लिखोगे और पैरीमीटर को हम सेंटर में लिखेंगे और ये एडिशन हम रफ नोटबुक पे करेंगे. नाउ कम टू पार्ट सी. इसका बी और डी पार्ट आपने खुद से करना है. ए और सी पार्ट मैंने कर दिए. यहाँ मैंने बुक से इस फिगर को मेज़र कर लिया था और मेज़र करके इसके मेज़र को मैंने यहाँ राइट कर दिया है. ये दिस लाइन सेगमेंट इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ ऑफ 2.7 एंड दिस लाइन सेगमेंट की लेंथ है 2.3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज़ 3.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर एंड 2.7 सेंटीमीटर्स. जब हमने इन्हीं सभी लेंथ्स को प्लस किया, हियर आवर आंसर इज़ 14.2. सो पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर, क्योंकि इस फिगर का भी हम सभी लेंथ को मेज़र करके इस फिगर का भी हम पैरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 14.2 सेंटीमीटर. और बी और डी पार्ट आपने खुद से मेज़र करने हैं अपनी बुक में. इसी तरह से आप उनकी बाउंड्री की लेंथ लिखोगे और सेंटर में उसका पैरीमीटर राइट करोगे और ये आप बुक में राइट कर सकते हो. मैंने बुक से ही मेज़र करके इन सभी लेंथ्स को राइट किया है. Now come to question number 2. Find the perimeters of the following figures using the measurement given below. यहाँ हमको बुक में फिगर्स गिवन है और साथ में उनका मेजरमेंट भी किया हुआ है. हमने जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, इन सभी लाइन सेगमेंट की लेंथ को प्लस करके जो सम आएगा उसको फाइंड आउट करना है क्योंकि दैट सम इज द पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर. सो फर्स्टली इन ए पार्ट वी एड दिस ऑल द लेंथ ऑफ दिस साइड्स. Here 4 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter. So we will add this all the length of 4 sides, 4 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter and sum of these is 14 centimeter. Now come to the B part. 14 centimeter is the perimeter of this figure. Now come to B part. Here the measurement given है हमको figure की 2 centimeter, 2 centimeter, 4, 3 and 4. So we will add all these lengths. 2 सेंट यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 सेंटीमीटर एंड आवर आंसर इज़ 15 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन भी आपने बुक में ही राइट करना है. आपकी बुक में जो फिगर बनी हुई है, फिगर के नीचे आपके पास बुक में स्पेस है तो उस स्पेस पर आप इस लाइन को राइट करेंगे एडिशन वाली को और लास्ट में आंसर राइट करेंगे. इसी तरह से बी पार्ट के नीचे भी आपके पास स्पेस है, वहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन राइट करोगे. Now come to part C. Here the measurements are given of this figure. So firstly we add all these measurement of the figures. सभी sides की जो measurement given है तो हम सभी sides की measurement को write करके यहाँ पे प्लस करेंगे. 1 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर, then 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. जब हम इनको प्लस करेंगे तो हियर आवर आंसर इज 16 सेंटीमीटर एंड दिस 16 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर. ओके, नाउ कम टू पार्ट डी. इन डी पार्ट हियर इज ऑल्सो द मेजरमेंट्स आर गिवन ऑफ ऑल द साइड्स. तो फर्स्टली अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है
क्या जब हम मेज़रमेंट इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो सभी साइड्स के साथ क्या हम 5 सेंटीमीटर को भी ऐड करेंगे? करेंगे? यस और नो? अगर करेंगे यस तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। 5 सेंटीमीटर को हम साथ में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ का हमने सम लेना है, जबकि 5 सेंटीमीटर तो इस फिगर के अंदर लगी हुई लाइन है। इस फिगर में कितनी भी लाइंस लगा लें हम उनको पेरीमीटर काउंट करते वक्त उनकी लेंथ्स को ऐड नहीं करेंगे। हमने सिर्फ किन को ऐड करना है? बाउंड्रीज को। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बाउंड्री 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, 3, 2 एंड 2 सेंटीमीटर। सो हेयर आवर आंसर इज 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। इसमें हम ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट की लेंथ को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ का सम होता है, इसलिए हमने अंदर इनसाइड में जो लाइंस लगी हो उनका जो लेंथ है वो ऐड नहीं करेंगे। तो बेटा नाउ वी हैव कंप्लीट द वर्कशीट 2। सो यू विल राइट डू द वर्कशीट 2 इन योर बुक ओनली। ये बुक वर्क ही है, बुक में ही राइट करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका मैंने ए और सी पार्ट करवाया था, बी और डी पार्ट मैंने छोड़ दिया था। वो आप खुद से स्केल से लेंथ को मेज़र करोगे और उनको राइट करके रफ में प्लस करोगे और उनका आंसर फिगर के बीच में राइट करोगे। ओके, बी और डी पार्ट आपने खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स मैंने करवा दिए। ये भी बुक वर्क है, बुक में ही करना है। सो टुडेज योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट वर्कशीट 2 इन बुक। तो बेटा अभी आपका पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी टाइम है आपके मैथ्स के पीरियड में। 35 मिनट्स का आपका पीरियड होता है। तो अब आप क्या करोगे? कल हमने 12 का टेबल लर्न किया था, आज आप 13 का टेबल लर्न करोगे। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप जल्दी से नोटबुक निकालोगे, 13 का टेबल लर्न करोगे, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे टेबल को रिसाइट करते हुए, और पीरियड में ही मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड करोगे या फिर ग्रुप में, मैथ्स ग्रुप में सेंड कर दोगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।